जैसे मैं पहले बता रहा था कि लीनियर अलजेब्रा में हम लीनियर फंक्शन से डील करेंगे, और लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं, अगर कांस्टेंट जो है डोमेन के अंदर आ जाए या बाहर रहे, अगर कोई चीज़ में कोई चेंज नहीं आती तो दैन दैट विल बी डिफाइंड एज अ लीनियर फंक्शन। और अगर कांस्टेंट से बाहर अंदर आने से फर्क पड़ता है, if that are not equal, if c comes in inside the domain or outside the domain, then that will be non-linear function. Similarly, it is true for the operators. If constant comes inside the operator, then and there will be no change, then that will be defined as a linear operator. And if that are not equal, then that will be a non-linear operator. Okay, except for examples. If, for example, a higher order differential equation, in according to if we define the higher order differential operator, differential equation is a differential function is a differential operator. ये ऑपरेट के तौर पे ट्रीट करता है। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज अ लीनियर ऑपरेटर। Why? Whenever if you multiply a constant inside or outside, there will be a no change. So that's alpha mean any type of variable. So constant derivative के अंदर जाए या बाहर आए, there will be a no change. So that means this operator is a differential operator. Differential operator कोई भी ऑर्डर हो, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल n1 है, even 1 है, 2 है, 3 है, in all cases derivative operator is a linear operator. So this is a linear operator. So differential operator is a linear operator. Clear? Okay. Yes. Similarly, if you are integrating infinite time, any time, 1, 2, 3, I, n, d alpha 1, f alpha, d alpha 1, d alpha 2, d alpha 3, d alpha n. If you are integrating in n times, so higher in order integration operator is also a linear, because if you multiply a c outside or inside, there will be a no change. Okay, you know that constant always comes out from the integration or the differential. Constant differential और integration में दोनों same ही है. Same. So that's why that is defined as a linear. So higher order integration operator is also a linear operator. ठीक है? Okay. Similarly, matrices are linear operator आ रहा है. Matrices हो, मसाल तौर पे एक मैट्रिक्स है, ये स्केल मैट्रिक्स जो है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, एम ई कोई भी मैट्रिक्स है, हाँ कोई भी मैट्रिक्स है, इसका मिसाल के तौर पे ऑर्डर जो है एम एन है और ए आई जी इसके एलिमेंट है और सी हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी विल बी मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी एलिमेंट. इट मीन दिस इज आल्सो अ linear operator. There will be no change. Constant का हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा,
So that's why that will be a linear operator. So it will come out from. So matrix कोई भी जैसे square rectangular या कोई भी हो तो that will be defined as a linear matrix. Sorry, linear operator. All these are the multiplication. If constant is multiplying with the any number multiplication, then even it is also a linear. So multiplication with constant is also a linear operator. Okay. अच्छा, what is the examples of non-linear operators? Non-linear operators कौन से हैं? Yes. नहीं, मैट्रिसेस तो लीनियर सर ऐसे ऑपरेटर जिसमें कांस्टेंट के ज़रूरत देने से कोई तो फर्क। उसमें फ़र्क आ जाएगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी की पावर है सी की मतलब अल्फा की पावर एन दी है, ठीक है, सी से मल्टीप्लाई कर, दिस विल बी नॉट इक्वल टू, मैं इसको इस तरह लिखता हूं तो ज्यादा समझ आएगा कि सी अल्फा की पावर आप लेते हो, मैं पहले समझ, ठीक है, सी को अल्फा से आपने मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी नॉट इक्वल टू सी अल्फा पावर और एन नॉट इक्वल टू ऐसे। तो उसमें अल्फा क्या होगा? अल्फा कोई भी वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, जी है, टी है, अगर आप अल्फा की पावर ले रहे हो, डिफरेंशियल ऑपरेटर भी हो सकता है, किसी भी आप किसी भी उसकी आप पावर जब भी लेते हैं, मैंने पावर ऑपरेटर एन की पावर 1 नहीं होनी चाहिए, 1 हो तो तब तो वो तो इसी लीनियर ऑपरेटर ही होगा, सही नहीं आएगा। बट बस आगे तो मैं इसको ज्यादा वाज़ेह तौर पे इस तरह लिख देता हूँ कि अगर मैं एन लेता हूँ तो ये सी एन अल्फा एन बनेगा ना, सी की पावर, एंड दिस विल बी नॉट इक्वल टू सी अल्फा एन एन इज इक्वल टू नॉट 1 के लिए ठीक होगा, इक्वल होगा, बट ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है ना, यस, तो देन दैट इज नॉन-लीनियर ऑपरेटर। so all powers are a non-linear operator, ठीक है, क्लियर हो गया? अब तक कोई मुश्किल? so similarly if we take a या वैसे ही करते हैं, एक ही एग्जांपल आ हायर डिग्री डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड हायर डिग्री इंटीग्रेशन ऑपरेटर, whenever we take a degrees mean power, तो हायर डिग्री डिफरेंशियल ऑपरेटर विल बी नॉन लीनियर क्योंकि उसमें भी पावर आ जाती है। हायर डिग्री डिफरेंशियल ऑपरेटर, वो बात वही है, ठीक है। डिग्री क्या कहते हैं? डिग्री मीन पावर, डिफरेंशियल आपने पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ डेरिवेटिव की डिग्री, सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री, मतलब जो उसकी पावर होगी, ठीक है। सो इफ यू मल्टीप्लाई कांस्टेंट दैट इज विल बी नॉट इक्वल टू actually in simple word whenever there is a power
that is not n equal to 1, that will be defined as a non. Okay, I think it is a simple. Yes. And और क्या हो सकता है? सर इसमें नहीं n is not equal to 1 होगा. हाँ वही, हाँ yes yes for n is not equal, ठीक है, n मान हुआ तो फिर तो हो गया ना. फिर तो ये नहीं है. और determinant of matrices are also not ठीक है. determinant ऑपरेटर जो है, determinant of matrices, determinant of square, because determinant we always find the determinant of the square matrix. Determinant of the square matrices will be non. That will be a non. Okay. While you know that if that C M MM means number of row and column will be the same. Okay, if the number of rows and column are same, okay, if constant is multiplying with every element of the matrices, according to determinant rule, if you take C common or outside the matrices, then it will come out from only one row or a one column. Not all the rows are not comes from the all elements, but come from the only one row or one column. ऐसे ही है ना? मैं दोबारा बता देता हूँ. चलो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. अगर आप इफ C will come out from the order Mn, it will be equal to this will be equal to C power M determinant of M C Aij M. Okay, and this will be equal to not equal to C determinant because M अगर 1 नहीं है for M not equal to. क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप ये पूछोगे ये आया कैसे, ये मैं बता दूँ, ठीक है. अभी ये समझो, क्योंकि C की पावर M आ रहा है, so it mean that is will be not equal. Okay. अच्छा, now your question why it is, आप अभी आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई है या बताने की जरूरत है कि why it is equal to C power M? नहीं है. We know that M Aij C Aij. Okay. Matrices of order M. Matrix का ऑर्डर क्या है? M. ठीक है. सर mm का मतलब क्या होगा? एक तो नंबर M mean first M mean the number of rows and second M mean number of column. तो उसमें तो m by n ही लिखते रहते जब हम लोग करते थे.
स्केयर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर दोनों बराबर होंगे वैसे। दोनों बराबर है मैम, m और n बराबर है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक हो। और nm जरूरी नहीं है, आप ऑर्डर कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने ऑर्डर पीछे उसमें मैंने nm लिख दिया या mn लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको पहला जो होता है एलिमेंट, पहला जो इंडिसेस होता है वो रो को जाहिर करता है, दूसरा इंडिसेस उसका mn जरूरी नहीं है, pq लिख लो, lm लिख लो, कुछ भी लिख लो, वो जरूरी नहीं है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। बट इफ both are same then it will mean square matrices, or if they are different then they, but for determinant these determinant we always find the determinant of the square matrix, not a non square matrices, ठीक है। non square matrix का कैसे determinant निकाल सकते हो, कोई तरीका है? तो क्या होगा, what will be the answer? mean if I say that this is first row first column, okay, let's suppose मैं ith row ले रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 ith is changing, ठीक है, ठीक है। ith row फर्स्ट कॉलम, आई का मतलब वो चेंज होती है, वेरिएबल है, रोज मैं सारी नहीं लिख रहा, सिर्फ कॉलम लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट कॉलम ith row second column, ith row third column, ith row m का। so c will be multiplied with, अगर c सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो c यहाँ हर एलिमेंट से multiply, ठीक है। i का मतलब है कि ये सारी कॉलम को सारी रो पर, ओके, क्लियर हो गए यहाँ तक? नहीं होगा तो मैं इससे भी आसान है कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट का असूल क्या है? डिटर्मिनेंट भी तो है हमारे बुक में पूरी, डिटर्मिनेंट सी i1 सी i2 सी i3 सी in, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, ओके। अच्छा, डिटर्मिनेंट के रूल के मुताबिक ये होता है कि व्हेन यू एवर यू टेक अ कॉमन सी बाहर आएगा तो इट विल बी कम फ्रॉम इट विल बी कॉमन फ्रॉम वन रो और वन कॉलम, यानी तमाम रो, एक ही रो के तमाम एलिमेंट्स, यानी इफ सी इज मल्टीप्लाइंग हियर, सी इज मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, C is multiplying each element of the second row, the second column, and each element of the third column. तमाम जितनी भी रोज हैं इसमें, उसके थर्ड कॉलम के जितनी भी रोज हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई। So if you take a common C, so then it will come out from the one column. Mean you can write that will be AI1, AI2, CAI2, CAI3 and CAIN. Okay? If I take common from the second row, then it will become a C square, that AI1, AI2, CAI3 and CAIN. If I take from 3, again from third column, then it will power C square बन गया ना, दो टाइम लिया तो C square, C multiply by C is a square, so then that will become a C3 cube, and that AI1, AI2, AI3, CAI4 and CAIN. If I repeat all these steps, then C power m थे, yes, this one m. So C power m, determinant of AI1, AI2,
AI3 until AI. So this will be not C, that will be the C order of C power n. Yes. Okay, maybe you are confusing. Yes, are you still confused? ये ठीक है सर, अच्छा हो गया। नहीं, अगर कंफ्यूज हो तो मैं इससे आसान एग्जांपल दे सकता हूँ। सर इसमें ये मिसल कार्गो का ये रूल है कि हम जो है ना अगर कॉमन लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ एक रो से लेंगे या मतलब या आपकी मर्जी है, एक रो से ले लो चाहे एक सर कॉलम हम से। इसे एक स्टेप में क्यों सभी में से कॉलम लिख सकते हैं एक स्टेप में? नहीं ये नहीं सी क्या कह रहे अगर हैं? ये सी को एक ही स्टेप में हम लोग कॉमन ले सकते हैं, मतलब जैसे वो फर्स्ट नहीं, मैंने कहा एक दफा सी बाहर आएगा तो सिर्फ एक रो से, किसी एक रो से निकलेगा या एक कॉलम से निकलेगा। डिटर्मिनेंट में और है, मैट्रिसेस में ये होता है कि वो सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। जब भी सी अंदर जाएगा तो एक रो या एक कॉलम से, पूरी एक रो या पूरे एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। मैं, मेरा ख्याल है अभी थोड़े से आप कंफ्यूज हो, मैं थोड़ी सी और एग्जांपल, यानी इसको मैंने उस फॉर्म में किया, मैं जरा आपके लिए और आसान कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपके पास में कोई मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे असल तरीका तो यही है, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि मिसाल के तौर पे एक M मैट्रिसेस है जो कि A11, A12, A13, AIN, सॉरी A1N। आपके लिए कर रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। A21, A22, A23, A2M आ गया, A31, A32, A33 एंड A3M, और इसी तरह if you AM1, AM2, AM3, AMM आ गया। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल। ओके, ये मैट्रिक्स है, MM मैट्रिक्स, वो जो मैंने इधर लिखा था उसको जरा आसान रिप्रेजेंटेशन में ले दिया, ठीक है। अच्छा, MC, ये आपके पास था MIJ विद ऑर्डर M, ठीक है, ऐसे था ना, ये मैंने बोला। अगर मैं C के साथ लिखता हूं तो इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है C। जी CA1, CA12, CA13, CA1M, CA21, CA22, CA23, CA2M, CA31, CA32, CA33, CA3M। CAM1, CAM2, CAM3, CAM. So this will be a matrix. Yes. यहां तक आ गया कोई मसला? ये साउंड किस चीज की है? ये ठीक इस चीज के सर इसी की If you take a common, if you are interested to take a C as a common, there are two methods. आपके लिए कह रहा हूँ, there are two methods. Whether you can take C common from
फर्स्ट रो और सेकंड रो और थर्ड रो, किसी एक रो से आप वेदर टेक अ सी कॉमन फ्रॉम एनी वन ऑफ द कॉलम, बट ओनली वन। तो सब रो से लेना होगा तो वो सी की पावर बन जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं थर्ड से लेता हूँ, इफ आई टेक रो लूँ कॉलम लूँ, सर को रो ले लें। मैं थर्ड रो से ले लेता हूँ। तो आपके पास इफ आई टेक दिस सी एज ए कॉमन, तो अब चलो इसी नहीं, अब इफ आई इंटरेस्टेड टू टेक कॉमन, अच्छा थर्ड से लूंगा, ये है, ये चीज है, यहां सी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इफ आई टेक कॉमन फ्रॉम सी थ्री, थर्ड रो, तो ये सी की पावर एक से आ जाए। समझ आ रही? इफ आई टेक कॉमन फ्रॉम सेकंड रो, तो ये क्या बन जाएगा, सी की पावर सी 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 स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं थर्ड एन रो से लेता हूं या थर्ड फर्स्ट से भी ले लेता हूं, देन इट विल बिकम अ सी क्यूब। इसी तरह अगर मैं सभी रो से ले लेता हूं तो ये बन जाएगी सी की पावर। क्लियर हो गया? नाउ इट्स अप टू यू कि या तो रोज को कंसीडर कर लो, आप बात सुन रही हो, या तो इट्स अप टू यू, या तो सारी रो को कंसीडर कर लो या कॉलम, बट फॉर डिटरमिनेंट यू कैन, अच्छा सॉरी ये जरूर लिखना है, रिकॉर्ड होगा, दिस इज अबाउट द डिटरमिनेंट, नॉट मैट्रिसेस में सब में कॉमन आएगा, दिस इज नॉट अबाउट द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में सी कॉमन हो गए तो सब रो से आ जाएगा, बट इन डिटरमिनेंट if you take a common then it will come out from only one row or one column, but in the matrix case it will come out from the all the rows. Okay, so this is so that's the evidence of that, the evidence of the determinant sorry matrices are the whether they are square or not, the matrices are the linear, but the determinant of the matrices are not linear. Okay? Yes. Okay. All trigonometric functions are a non-linear function. All trigonometric function hyperbolic function all trigonometric function, hyperbolic functions, logarithmic function, functions are non-linear. You know that sine, for example, you know that sine alpha C is not equal to sine C. ऐसा ही है ना? So all hyperbolic function, trigonometric function, etc. are all logarithmic function. Each are all these functions are non-linear. Okay? Yes, sir. So I think it is a very clear what are the linear and what are the non.
linear equations. The equations which have all operators and functions are linear. If there is a equation which have all the operators and function are linear, then that will be defined as a linear equation. ठीक है? The equation which contain all operator and function are linear. मतलब I should write as the equation which contains only linear functions or operators will be defined as linear equation. All type of the all equations which are okay, simple. For example, example, zero mean मतलब one mean first derivative. Okay. So m in order, m in यहाँ fm mean m time differentiate. Okay, this is m is order of it. Okay. So since equal to 0, so f will become a common, mean f from I may take a common from. Okay. Mean you can write this equation in such a way. You want to write in simple one. Cm d by d alpha m plus Cm minus 1 d power m minus 1 d alpha m minus 1 plus Cm minus 2 d m minus 2 d alpha m minus 2 plus C d by d alpha
f alpha. Okay. All the differential operator c is constant. मैंने कहा c जब भी c as a multiplying operator, constant as a multiplying operator is a linear. I have already told. Okay. And the order of the derivative, ये function is common. You can may take a common. So that's why it will be not common non-linear function. Okay. But all the because it will be give the solution. This is the your equation, differential equation. So in this equation, no and not even a single operator or any function is involved which are non-linear. Multiplication of constant with any operator is or any function that will be defined as a linear. So this is the linear differential equation. ठीक है? Yes sir. क्लियर हो गया? कोई मुश्किल? Are you confused? Yes sir. क्या कर रहे हो? सर इसमें f हम लोगों ने कॉमन लिया है। f तो ये आ जाएगा ना, दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल, ये तो सॉल्यूशन आएगा ना, f का तो सॉल्यूशन होगा एज ए सॉल्यूशन का, ये y समझ लो, f समझ लो। यस, तो सर ये d का इसमें क्या मतलब है? d है क्या अल्फा है? d by d अल्फा डिफरेंशिएशन विद अल्फा इज अ वेरिएबल, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z। तो ऑर्डर जितना भी हो, डेरिवेटिव का जितना भी ऑर्डर हो, आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट विल बी अ लीनियर ऑपरेटर। तो इसमें जितने भी ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर्स इन्वॉल्व दिस इन इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज द लीनियर ऑपरेटर। नो फंक्शन इज अ नॉन लीनियर। इसमें जितने भी फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं दैट इज अ लीनियर फंक्शन। सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन विल बी डिफाइंड एज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, कोई मसला? एक एग्जांपल, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? एक जिसम अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द जो है ना मोशन का इक्वेशन। हाँ ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? All simple harmonic motion equation has f equal to minus k alpha. Alpha is variable. X, you say that in FSC maybe take alpha as x, but ये x के साथ भी हो सकता है, y के साथ भी हो सकता है, z मैंने ऐसे उस तरह, ठीक है सर। तो अगर आपने x लिखना है, it is looking difficult for you, then you may write a x, but for generalization I have taken the alpha. Okay, so alpha मैं ज़्यादातर generalize है। So F according to Newton's second law, F equal to ma. Okay. Yes. If I don't do, then F equal to ma mean d alpha over alpha. If alpha is position variable, then the second derivative, first derivative is velocity and second derivative is the acceleration. Okay, Yes. so I may write it. So equation of simple harmonic motion, what will be that? M d alpha square over d square, that is equal to k alpha. Oh yes, you are right, minus.
All attractive forces are, I have already explained. Yes. I think all attractive forces are all elastic restoring forces, and all attractive forces are negative forces. So harmonic motion is also comes in a central accelerated force, yeah, attractive force. That's why there will be de-acceleration. I mean, acceleration will be a negative. I think I have explained it in the first lecture. Okay, so that's why there must be a, and you can write in this way that that is equal to minus km alpha. Okay, and k and m is constant. Yes, I sir. think that is will be angular velocity, yes. Yes, sir. Yes. Omega, huh? Yes. That is k divided by m is the angular velocity, or different thing. And scale of the angular velocity, I think so. But I don't know. ऐसे ही omega square, I think. एंगुलर वेलोसिटी में तो एंगल भी है। Angular velocity में omega से angular velocity. So, Angular velocity is d alpha over dt. You are right, but it is a uniform in a simple harmonic motion. Then will be a. So ये constant है वैसे। ये constant है. In simple word that is constant. ठीक है. So d alpha and dt plus omega naught square. You can take the common alpha. This is constant. This is constant. Okay. Oh, sorry. Linear operator. Constant is also a linear. Multiplication of constant is a linear. Okay. Not constant variable. Okay, so this linear operator, everything is in this equation is a linear. So that's why simple harmonic motion is defined as a linear differential equation. सर ये ओमेगा स्क्वायर, Omega naught scale. ओमेगा नॉट स्क्वायर सर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, Angular velocity, not एंगुलर वेलोसिटी। Yes. सर एंगुलर वेलोसिटी पर सिंपल हार्मोनिक मोशन तो टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। तो सर ये इसमें एंगल्स का इसका सर्कुलर अगर होता, सर्कल होता तो असल में एक कोर्स में पढ़ाता हूँ, अमूमन यहाँ पढ़ाया नहीं जाता। मैं मतलब उसके बहुत ज़्यादा हक में, और वो बहुत मज़े का कोर्स है, लाजमी होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन थ्योरी का, इक्विवेलेंस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, उसका एक लेक्चर में भी अवेलेबल हो मैंने, क्योंकि जब मैं पढ़ाता था एडवांस मैथमेटिकल मेथड इन एमफिल, तो वो इक्विवेलेंट का एक चैप्टर पढ़ाता था, नकारा का चैप्टर है, वो बहुत ही मज़े का चैप्टर है। सर क्या बताया था? उसका नाम था इक्विवेलेंट स्पेसेस एंड रिप्रेजेंटेशन, इक्विवेलेंट क्लास स्पेसेस एंड सर ये रिप्रेजेंटेशन। सब्जेक्ट है? हाँ, वैसे तो इसका पूरा कोर्स आता है कि दो चीज़ें जो इक्वल नजर नहीं आ रही लेकिन टोपोलॉजिकली वो इक्वल होते हैं, क्यों होते हैं, उसकी क्लास कैसे बनती है, अगर वो सब्जेक्ट आप पढ़ लेना तो आपको पता सही क्वांटम पढ़ने का वो बड़ा मजे का सब्जेक्ट का नाम बता दो, मैं सर्च कर लेते हैं। वो वो बड़े मजे का है। उसका नाम है इक्विवेलेंट क्लास, नहीं उसका नाम है इक्विवेलेंट स्पेसेस क्लासेस एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। ये बड़ा अच्छा मजे का, या रिप्रेजेंटेशन थ्योरी के नाम से भी आता है। रिप्रेजेंटेशन थ्योरी तो और चीज में आ जाती है, लेकिन ये चीजें ना इक्विवेलेंट स्पेस क्लास एंड रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने चैप्टर ये ना एक लेक्चर देता हूँ, आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो मैं असल में ये कोर्स में बनता है मैथमेटिकल मेथड ऑफ एमफिल की, लेकिन मेरे अलावा ना ऐसी चीजें कम ही लोग पढ़ाते हैं। सर अभी तक एक वो भी होता है भाई, जैसे मैथ्स के अंदर एक होना चाहिए सब्जेक्ट मॉडलिंग का। मॉडलिंग अभी तक किसी को नहीं आती, हमें सिर्फ ये पता है कि हमने ये काम ना ऐसे लिख दिया, मुझे हमें सिर्फ करवाया जाता था 1-2 क्लास में फर्स्ट, उसके बाद हम मॉडलिंग नहीं कर पाते।
तो वो तो कोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे। ओके सो हमने ये देखा कि कांस्टेंट इज आल्सो, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज आल्सो लीनियर फंक्शन एंड दिस इज differential operator, and differential operator is also a linear. So everything in this equation is a linear. If everything is a linear, then that differential equation will be defined as a linear differential equation. इसी तरह similarly higher order differential equation, this type of या this form जिसमें इस m-1 का मतलब कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब डिफरेंट कांस्टेंट है, यानी इनके कोफिशिएंट है, इनमें से some coefficient may be a zero, some coefficient may be a non-zero. तो अगर इनमें से कुछ जीरो हो, even then कुछ नॉन जीरो हो, in all cases अगर if c is a constant then this will be अगर c is any sin function, cos function या इस तरह का कोई फंक्शन होगा तो then that will be a non-linear, ठीक है। एन हार्मोनिक मोशन और इस तरह की जो होंगी आपके पास इक्वेशन, वो भी देखें आप, चेक करें नॉन लीनियर कौन सी होती है, ये आपके मतलब असाइनमेंट समझ लो, ठीक है। अगले टाइम यू हैव टू फाइंड दी व्हाट आर दी लीनियर इक्वेशंस इन फिजिक्स एंड व्हाट आर दी नॉन लीनियर इक्वेशंस। सम एग्जांपल्स पार्टिकल फिजिक्स के रिलेटेड मैं ज़रूर दूंगा, बेशक आपने पार्टिकल फिजिक्स, उसकी वजह यह है कि आपको वाई, बिकॉज आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, नॉट यू आर अ मैथमेटिशियन बट यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट। सो हम सर वो जो इक्वेशन हायर ऑर्डर वाली है जिसमें सी एम और एफ फंक्शन की प्रॉपर्टी एम है, तो वहाँ जहाँ सी जीरो है तो वहाँ एफ के ऊपर क्यों नहीं फंक्शन का? एक्चुअली जीरो मीन पावर नहीं है, ये एम मीन ऑर्डर है, ठीक है। अगर एफ जीरो लें तो इट डजंट मीन कि एफ की पावर जीरो, बट यस यहाँ ये वैसे सी इसके बगैर आएगा, यहाँ मतलब है कि फंक्शन विदाउट डेरिवेटिव, फंक्शन हुआ ना, मीन इफ यू आर टेकिंग f1 it mean d by d alpha f alpha, this is mean, ठीक है। f1 mean फर्स्ट डेरिवेटिव, तो f0 तो नहीं लिखोगे ना, f0 mean f alpha itself, ये भाई ओके समझ लें। यहाँ f0 से मुराद f की पावर जीरो नहीं है, बट f0 से मुराद नो डेरिवेटिव, फंक्शन इटसेल्फ, सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन देयर इज नो डेरिवेटिव, जीरो लिखा नहीं जाता जब भी डेरिवेटिव, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ये इट मीन द फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। सो अगर इफ देयर इज अ f2 अल्फा, इट मीन द सेकंड डेरिवेटिव, इट मीन सेकंड, not it is not power, actually it is not power, it is this order, okay, and here doesn't mean ये यहाँ m-1 से इसका कोई तल्लक नहीं है, ये this mean कि कोफिशिएंट को डिफरेंशिएट करने के लिए ये m है, यानी m ऑर्डर के साथ m वाला कोफिशिएंट है, तो ये cm से मुराद कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसकी तरतीब है, ये कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है यहाँ मिसाल के तौर पे आप ये लिख सकते हो, यानी यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 6 हो सकता है, यहाँ 0 से बराबर 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ 10 भी हो सकता है, या 20 भी लिख सकते हो। इट डजंट मीन कि ये कोई C1 C2 का मतलब कोई खास, C इज अ कांस्टेंट जनरली, ओके, एंड वो जो इंडिसेस है उसका कोई खास मतलब नहीं है, वो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए रखा गया कि ये C1 से मुराद फर्स्ट ऑर्डर का कोफिशिएंट, C2 से मुराद सेकंड ऑर्डर का कोफिशिएंट, और इसके अलावा कोई फर्क नहीं है, इसका कोई C2 से पावर से मुराद नहीं है, C0 से मुराद कुछ भी नहीं है, मतलब ये है यहाँ ये C0 20 डाल दिया मैंने, यानी इसका उस नंबर से कोई तल्लक नहीं है, उस इंडिसेस से तल्लक नहीं है, इस इंडिसेस का सिर्फ ये मतलब है कि ये हम पहचान सकें कितने कोफिशिएंट से आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये 6 की बजाय यहाँ 0 और ये ऑर्डर ना हो, ये बीच में तब 0 मतलब गायब भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने वैसे यहाँ लिखी हुई है, तो और ये जो इवन ही हो या ओड हो, कोई कुछ भी हो, या मतलब लो वो अपनी मतलब दैट इज द कांस्टेंट, C मीन कांस्टेंट, एंड C1 2 3 से मुराद द कोफिशिएंट ऑफ द first order या second order या third order. If the C3 it is multiplying with the third order differential operator. C2 mean it is multiplying with the second order differential operator. Okay. So
इसका कोई मतलब नहीं। मैं इस तरह की तमाम इक्वेशंस फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ 5f3 अल्फा प्लस f alpha. Everything is missing. 2, 3, 1 is missing. या मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मान भी हो सकता है, बाकी तमाम का ऑर्डर 0 है, यानी उसमें से 5 के मैं नहीं, सॉरी यहाँ लिख दिया 3, यानी 3 के बाद 2 का कोफिशिएंट 0, 1 का कोफिशिएंट 0 और फंक्शन खुद से है। सो मतलब इसको मैं असल में अगर मैथ के फॉर्म में देखूं तो 3 by d alpha plus 1. So this is a linear. Okay, but whenever we apply any non-linear function, for example, if I write this way that f 3 alpha 5 plus sine alpha f alpha equal to 0, this will be a non-linear equation. This is a linear, this will be a linear, ठीक है, linear differential equation, and this will be a non-linear equation. Why this is? Because sine alpha is non-linear. Sine alpha is a sine alpha is a non-linear function. Clear हो गया? सर साइन अल्फा नॉन लीनियर, All trigonometric function are non-linear. I have a, ठीक है, so that's why that is a non-linear function. Yes, sir. Whenever trigonometric is involved, it doesn't mean that will be a non-linear. It is possible if sine 60, that is sine 60 is constant. If the angle is constant, if angle is given or angle is fixed, then that will be. Here alpha is variable because f alpha is changing. Here alpha is variable, and that's why that is a non-linear operator, a non-linear function. But if alpha is constant, for example, if I write this equation, so this on the whole this equation, because this involves the non-linear function, so that will be a non-linear equation. But if I write 5 alpha 3, the same equation, but I write sine alpha naught. Alpha naught means angle is fixed, 30, 40, 60, whatever. If alpha naught is fixed, if angle is fixed, then it will become a constant. Its value will be a constant. Its value will be not changed. Alpha naught is constant. If alpha naught is constant, so then, because then it becomes a fixed, because angle is fixed. Angle, if angle is given, that is 30, 60, 90. If angle is fixed, alpha naught means fixed. इसकी value change नहीं होगी. Alpha mean variable, but alpha naught mean constant. If value is fixed, then that will be a constant. Or constant is a linear function. Multiplication of the constant is a linear. So then this will be a then if that is constant, then this equation will become a linear equation. Sorry, linear differential. You must be now this difference. ठीक है? Any difficulty? Complication. So all such kind of things which depend upon the linear function or linear operators. If your equation involved only the linear operators or linear function, then that will be defined as a linear equation. If even single one is a non-linear function or non-linear operator, then that will be defined as a non-linear equation. Okay? Clear हो गया? Simple? Yes. So simple harmonic motion is a linear
equation. Similarly, this is a linear, this is a non-linear. If there is a logarithmic function, trigonometric function, hyperbolic function with variable, then that will be a No. non. For example, if you have a equation, सर अगर लॉगरिथमिक है या हाइपरबोलिक है उन सब में अगर कांस्टेंट होगा so then that will be a linear. Constant तब is a वो linear. linear होंगे। हाँ, constant तो linear है. उसका रिजल्ट आंसर, अगर वो फिक्स है तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो linear. So, for example, you are right. For example, थ्री एफ की थ्री एफ टू एल्फा प्लस थ्री एफ टू एल्फा प्लस here I am taking not order, that is the power. If I am taking the power of any function, then that will become a non-linear because his power is a function की power. Okay? और this is non-linear because power is non-linear. Function की power, constant की power नहीं. If there is a power of the constant, अगर constant की power आती है तो तब उसे linear नहीं कंसिडर करना, सॉरी तब वो constant linear होगा. मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ c की पावर 3 f2 अल्फा प्लस 6 f अल्फा equal to 0. This is non-linear due to this, but c की power, if there is a power of c या sin alpha naught power 3, if there is a power of the constant, then it will be a linear even. So क्योंकि constant की power भी constant ही होगी because sin alpha naught की power 3 is constant and constant is linear. कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन आपने हमेशा, वेरिएबल की पावर जो है वो आपने जो है वो नॉन लीनियर होगी, कांस्टेंट की पावर जो होगी वो लीनियर होगी. सो दिस विल बी अ लीनियर, so this equation will be a linear equation. फंक्शन या वेरिएबल की पावर वो नॉन लीनियर होगी और कांस्टेंट की पावर है वो लीनियर होगी. लीनियर होगी, ठीक है. सो योर असाइनमेंट इज दैट कि आपने ऑब्जर्व करना है, लिख लिया असाइनमेंट क्या आपकी असाइनमेंट एनहार्मोनिक मोशन ये पढ़ा होगा आपने एफएससी में, बीएससी में और एफएससी में, ठीक है, एनहार्मोनिक मोशन, ठीक है. तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पता करनी है, वो क्या होती है, इज दैट लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है. ये सारा आपने असाइनमेंट में सॉल्व करके लाना है. नेक्स्ट इज लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर. ये आपने लिखनी है, ठीक है. इसी तरह यू हैव टू फाइंड 5. नेक्स्ट इज फाइंड 3 एग्जांपल्स इन फिजिक्स. 3
three examples of linear and non-linear differential equations. Okay, 3 लीनियर की और 3 नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की आपने एग्जांपल्स जो फिजिक्स में यूज होती हैं, जैसे कौन कौन सी हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, इसी तरह आपने जो है ना फिजिक्स में जो जो जैसे ये ना मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जैसे ड्रैग फोर्सेस की इक्वेशन है, ठीक है, आप देखोगे इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएगी ड्रैग फोर्सेस की इक्वेशन कौन सी होती है, वो लीनियर और नॉन लीनियर है, ठीक है। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की देख लोगे जो मैंने नहीं पढ़ाई उनकी 3 एग्जांपल लीनियर की और 3 ये 6 आपने टोटल 6 जो है वो करनी है। 7 आपने 3 ये एक्सरसाइज और 3 यानी 6 ये एक्सरसाइज एंड 1 इनकी 7 एक्सरसाइज है। तो जैसे कि एक सिंपल स्टेटमेंट इक्वेशन लिखी हुई है सिंपल नहीं, अब यू हैव टू फाइंड द एग्जांपल इन फ्रॉम द फिजिक्स, ठीक है, समझ आ गई। आपने गूगल पे जाकर देख ले, जहाँ से देख ले आसानी से मिल जाएंगी। जैसे मैंने कहा आपको एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को चेक करो, ड्रैग फोर्सेस को चेक करो, सॉरी ये कैसे है? एग्जांपल इक्वेशन लिखनी है, और बतानी है वो लीनियर क्यों है नॉन लीनियर क्यों, वजह पूरी बतानी है। सिर्फ ये नहीं कह देना ये लीनियर है वहां से लेकर काफी, यू हैव टू जस्टिफाई, ये मैं लिखा हो ना लिखा हो, यू हैव टू जस्टिफाई योर ईच एंड एवरीथिंग। ये कुछ नहीं है कि रट्टा लगा दो, आपको बताना मुझसे, अगर मैं आपको कुछ नहीं बता रहा आप मुझसे पूछो कि सर ये क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यों यूज कर रहे हैं, ये लीनियर क्यों है, फंक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, आगे मैं इन सब की वजहों भी बताऊंगा कि क्यों पढ़ रहे हैं। आपको एक एक चीज की इंपॉर्टेंस हर चीज पता चलेगी, ठीक है। सो दैट विल बी अचानक ही 10 मिनट पहले कोर्स चेंज हो गया, सो दैट्स इट। अच्छा ओके, जो जरूरी बात है आपको कुछ एग्जांपल्स मुझे कराना है क्योंकि वो शायद आपको ना आती हो, तो वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपने इंशाल्लाह ताला मेरे पास आना है आगे क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ने भी, आप लोगों ने साइंटिस्ट बनना है इंशाल्लाह ताला। वन इज अ पार्टिकल फिजिक्स की एग्जांपल मेरे नज़दीक वो बड़ी, मैं बिकॉज क्वांटम फील्ड थ्योरी इज माय रिसर्च इंटरेस्ट एंड तो हम कुछ एग्जांपल। अच्छा उससे पहले सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो क्या होती है, आपने पढ़ी हुई है ना कैसे में। क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही है, ठीक है। तो एनर्जी का प्लॉट है, व्हाट इज द एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर इज योटा h कट करली बाय करली t इन क्वांटम मैथ्स। अभी आप बेशक इतना डीपली ना जाओ, दिस इज एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। एंड मोमेंटम ऑपरेटर इज माइनस योटा h कट करली बाय करली x, ओके, सही है। If we put this value on this, so iota h cut curly by curly t, where operator will be apply on any state. cat वगैरह मैंने आपको बताया हुआ है, any state, and minus kinetic energy क्या होगा, sorry अभी ऐसे ना लिखो, E will be equal to p square over 2m. Yes, this is kinetic energy. नहीं समझे, 1/2 mv वो तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना 1/2, यार एक तो बच्चों वाली बात है बताऊं, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m के ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ऊपर क्या आ गया p स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है। यस हम ये लीनियर मोमेंटम, ओके, दैट्स also kinetic energy is p square over 2m. Because in quantum mechanics, when you will come in quantum mechanics, जब आप CM पढ़ते तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन करना था कि quantum mechanics में we use the position and momentum, so that everything will must be converted into the position or momentum. That's why हमें kinetic energy must be converted into the momentum. Velocity actually in quantum mechanics वही actually problem is that in quantum mechanics quantization of velocity is very complicated.
and in some cases generally that the operator of the velocity can't be defined. Okay, so that's why we have to convert into the momentum. इतना ज़्यादा दिमाग पे जोर के देने की जरूरत नहीं, इतना ही काफ़ी है कि इन क्वांटम मैकेनिक्स जो है वेलोसिटी को का ऑपरेटर डिफाइन करना ज़रा डिफिकल्ट है, सो दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट इट इनटू द मोमेंटम. ओके, ये तो आपने तो सीएम में शायद पढ़ा होगा. नहीं कि why we need a momentum, why we Legendre transformation, that is the topic of the Legendre transformation. I think Legendre transformation तो पढ़ा है सर. So सर वो भी यही है, बस उसके अंदर ये होता है उसमें फोर्सेस होते हैं क्या काइनेटिक no, you are at very wrong place. Actually, Legendre transformation is converting one variable into the another variable. In Legendre transformation, we convert velocity into the momentum. सर मैंने इसका सर किया था कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर हमें बहुत सी यानी कि चीज़ों की जरूरत होती थी, वेरिएबल्स की, ये चीज़ें मानता हूँ एक, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो Legendre ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अंदर हम विदाउट फोर्स आप इक्वेशंस और नहीं वो और चीज़ है. आइलर लैग्रेंजियन इक्वेशन की बात हो, दैट इज डिफरेंट. Legendre transformation mean convert one variable into the another variable. That is the different topic. सर वेरिएबल्स को चेंज Variable को चेंज करना, that is different. Legendre transformation and Lagrangian is totally different. You are mixing both things. ठीक है, Lagrangian is different and the Legendre transformation is different. But आप ये पढ़ोगे जब आप मेरे साथ पास वो जो उधर सीएम ठीक है, so नहीं तो आपको वो लेक्चर तो वीडियो अवेलेबल तो होगा. ठीक है, दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड सेल्फ कंसिस्टेंट लेक्चर्स, मतलब उनको सेल्फ स्टडी लेक्चर्स आप उनको खुद से पढ़ सकते हो वो. तो सो E इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m एंड पोटेंशियल एनर्जी प्लस टेंशन एनर्जी. So in form of the operators, if I convert in quantum mechanics we use the operators. If we convert it into the operator, that would be iota h cut curly okay, I write x psi this p square instead of p square if we take the okay this is a not mean constant mass this is non-relativistic. Okay, 2m naught plus vr. Okay, this equal to this. Okay, this is if I write in this form, this is x and this minus 1 square is 1, minus का square is plus 1. Okay, iota square is minus 1, iota square is minus 1. Yes, ऐसे ही. So if I write minus h cut square over 2m partial over partial x, a second order differential equation, we are not, this will be also converted into operator. This is this. Oh sorry, this is t time, not s. Okay, so this is the Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation. So this used in quantum mechanics. This is a simple Schrödinger wave equation. I think every term is a very clear. This is h cut. You know the meaning of h cut? Yeah, nahi. Do you know what is the h cut? If you don't know, you must ask me question. Please, you must be habitual to ask the question. Especially you must ask a question up till you can't get what is going on in the lectures. Okay. Never feel hesitation to ask the question. If you feel the hesitation to ask the question, then it means you are not good student. Okay, so you must ask again, and if you are not getting anything, you must ask the question. If you are not feeling comfortable, you must ask the question from your teacher. Okay, okay. Yes. So
So what will be happen? H cut not. H cut. What is the H? H cut is actually the H Planck's constant divided by 2 pi. Okay. इसे 2 पाई से क्यों डिवाइड किया? ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये वैल्यू इसके बराबर होती है। इन जो H कट होता है यहाँ यूज होता है। H कट का मतलब ये होता है कि H डिवाइडेड बाय 2 पाई। 2 पाई। ठीक। सर एच किसको डिनोट करता है? H प्लांक्स में प्लांक्स कांस्टेंट पढ़ते नहीं थे? ये प्लांक्स लेंथ और हाँ प्लांक्स लेंथ प्लांक्स कांस्टेंट को सर वो एटॉमिक की लेंथ थी। हाँ एटॉमिक कांस्टेंट वो प्लांक्स कांस्टेंट पढ़ते रहे। वो 2 पाई इसलिए यूज किया क्योंकि वो सर्कल नहीं ये चीज उस तरह बनती है ये उसके बगैर बनती नहीं। हाँ वैसे काफी इन सम इंस्टेंट क्योंकि वेव्स वहीं से क्योंकि पाई भी हमेशा सर्कल की फॉर्म में यूज होता है तो यानी कि पाई आ रहा है तो यानी कि कोई सर्कल जैसा हाँ है। लेकिन आपके समझने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है H cut aorta here using H cut m is mass H cut Planck's is Planck's constant is constant Yes, sir. 2 pi is constant Constant. H cut is Constant. constant and H cut 2m naught it is also constant. Yes, sir. So this term this constant Linear. ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है and the differential operators are linear so second order differential operator is constant linear and this term is also linear. Is it this linear equation? Yes, sir. Linear. No, it is not linear because potential is non-linear. 1 by एक कॉलम पोटेंशियल है तो 1 by r square फंक्शन की पावर वो एक नॉन कांस्टेंट VR is non-linear. वी आर ये नॉन पोटेंशियल कभी भी उमूमन लीनियर नहीं होता लीनियर होते हैं कुछ पोटेंशियल है बट मतलब कॉलम पोटेंशियल इज नॉट लीनियर यू नो दैट यस पावर में है ना माइनस की पावर में हो चाहे प्लस की पावर में ठीक है 1 तो नहीं है एटलीस्ट ठीक है तो बिकॉज VR is not linear everything is a linear differential operator is a linear time operator is linear everything is in this equation everything is a linear in Schrödinger wave equation everything is linear except potential. VR is non-linear. If anyone, even single variable is non-linear, then your operator will be a non-linear. Okay? So this equation is a नो so SW is non-linear. That's why the solution of this solution of linear equation is simple, but non-linear is a very complicated. Okay, so that's why they are difficult to solve. यानी कि सर किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर नॉन लीनियर का एक भी कोई फंक्शन या कोई आ गया तो वो इक्वेशन ही नॉन लीनियर कोई question and that will become complicated to solve. ठीक है, and that's why whenever we use this Schrödinger wave equation, we have to use the perturbation techniques यस सर for linear परटर्बेशन और नॉन परटर्बेशन perturbation. We have to use the perturbation or approximative techniques. अप्रोक्सीमेशन आई थिंक है लेकिन but Schrödinger wave equation for free particle is linear because for free particle we are that will be a zero.
देयर विल बी नो अट्रैक्शन, वी आर इन पोटेंशियल, पोटेंशियल तभी होगा जब इंटरेक्शन होगी। इफ देयर इज नो अट्रैक्शन, मीन इफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रीली मूविंग, then Schrodinger wave equation for this electron will be a linear, यानी if VR 0 हो जाएगा तो बाकी सब चीजें तो लीनियर है। ओके ओके, all the equation which I have मतलब नहीं all equation नहीं कहना, मतलब जो भी आपके पास इक्वेशन जिनमें जो फ्री पार्टिकल्स के लिए होंगी वो आपके पास मोस्टली जो है वो जीरो हो जाएंगे, उसके लिए पोटेंशियल जीरो हो जाएगा ना। इंटरेक्शन पोटेंशियल इज इंटरेक्शन टर्म, फ्री पार्टिकल का हम पोटेंशियल नहीं ढूंढ सकते यार, पोटेंशियल उसी की किसी इंटरेक्शन की वजह से होता है ना। Yes, अगर इंटरेक्शन नहीं है तो देन पोटेंशियल जीरो। दो पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं या कोई कर रहे हैं कुछ भी है, कोई पोटेंशियल तभी होगा ना, कोई इंटरेक्शन है। इफ देयर इज नो इंटरेक्शन देन पार्ट फ्रीली, इफ देयर इज नो स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, फॉरवर्डिंग, इफ देयर इज नो पोटेंशियल देन दैट विल बी अ फ्री पार्टिकल। इफ द पार्टिकल इज फ्री देन द इक्वेशन विल बी लीनियर। ओके, सिंपल। यस सर। सर इसमें ये जो पोटेंशियल है ये किस चीज़ का पोटेंशियल है? इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान। ये सुनिए वेव इक्वेशन में कोई भी पोटेंशियल को क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, इंटरेक्टिंग पोटेंशियल है ना, जब भी दो चीजें इंटरेक्ट करती हैं तो उसका पोटेंशियल होता है, अदरवाइज पोटेंशियल नहीं होता। तो वैसे मैंने इसको अगर इलेक्ट्रॉन के केस में देखेंगे तो कोलम पोटेंशियल हो गया ना। कोलम जो होता है वो 1/r की पावर r ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना। मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, तो r की पावर में। सो दैट्स सिंपल। यानी कि V ब्रैकेट में आ रहा है, ये कोलम पोटेंशियल है भाई। हाँ, यहाँ आप ये कर सकते हैं, ठीक है। V का मतलब है पोटेंशियल और R जो है वो उसका फंक्शन है ना, ऐसा पोजीशन का ही फंक्शन होता है ना, 1/r ही होता है ना पोटेंशियल। आपने पढ़ा नहीं हुआ पोटेंशियल, जाके देखिए, ये भी आप असाइनमेंट समझ लो कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल क्या है या कोलम पोटेंशियल क्या है, तो आपको समझ आता है। ये जीरो हो गया तो फिर आपके पास लीनियर है, यही चीज मान लीजिए। अगर ये जीरो हो गया तो फिर तो अच्छा, जीरो होना जरूरी नहीं है, इवन इफ इट इज नॉट जीरो, इफ दैट इज कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल कंटीन्यूअस एक, हाँ, और इफ potential is constant, meaning VR is actually V naught, अगर इसमें एक कांस्टेंट है। आपने वो पोटेंशियल वेल स्टेप पोटेंशियल पढ़ा होगा यस सर, क्वांटम में, क्वांटम वहां V कांस्टेंट होता है। इवन पोटेंशियल होने के बावजूद उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एज ए लीनियर ट्रीट करते हो, उसकी वजह सर, उसमें वहां किसी ने क्वांटम में ये बातें नहीं बताई, इवन क्वांटम में मैंने उसको खुद ही ग्राफ को देख के कहा था, लेकिन लीनियर ऐसे नहीं पढ़ा होगा, वो लीनियर क्यों होता है या क्या होता है। तो पोटेंशियल, अगर इवन पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट, जीरो ना भी हो, कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट इज अ लीनियर। तो अगर आपका पोटेंशियल इफ दी योर पोटेंशियल इज कांस्टेंट, मीन जैसे पोटेंशियल वेल है, पोटेंशियल वेल में क्या होता है, दीवार के इनसाइड दी अगर पोटेंशियल वेल है, लेकिन अभी आपका वो टॉपिक नहीं है क्योंकि आप जब क्वांटम पढ़ोगे, इवन पोटेंशियल वेल है या स्टेप पोटेंशियल पढ़ते हो, यानी यहां भी आपका जीरो हो गया, ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एकदम इसको एक क्रोनिक-पेनी मॉडल सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ भी इफ v इक्वल टू v नॉट है, नहीं, यहाँ भी यहाँ जीरो है और यहाँ कांस्टेंट है, तो ये दोनों सूरतों में आपके पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है या फिर या लीनियर। इसी तरह इफ यू हैव अ पोटेंशियल वेल, यानी here v is constant, v is zero and v equal to v naught. In all these case आपके पास पोटेंशियल क्या है, यहाँ कांस्टेंट है
यहाँ जीरो है यहाँ इन ऑल केसेस पोटेंशियल इज अ लीनियर व्हेनेवर योर पोटेंशियल इज अ लीनियर इज कांस्टेंट और अ लीनियर देन दैट विल बी अ लीनियर इक्वेशन समझ आ गई रिपीट करें सर जब भी आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो या जीरो हो तो आपकी इक्वेशन लीनियर होगी क्योंकि पोटेंशियल ही इसे नॉन लीनियर बना रहा है अगर पोटेंशियल लीनियर हो जाए कांस्टेंट हो तो तभी लीनियर होता है बाकी सब टर्म्स तो लीनियर है ठीक है ठीक है ये सर कोई मुश्किल है अच्छा तो ये इसका है ये सारा कुछ आपको आगे बड़ा हेल्पफुल होगा जी सर ठीक है तो मेरा ख्याल है आपको ये सब ऐसा नहीं लग रहा होगा कि एक चीज पुरानी रिपीट कर रहे हैं ऐसा तो नहीं लग रहा इट विल बी नॉट अ बोरिंग लेक्चर इंशाल्लाह ताला होपफुली सो तो दैट्स व्हाई अब आपको पता चला इफ पोटेंशियल इज नॉन लीनियर देन दैट इक्वेशन Schrödinger wave equation will be a non linear but if potential is constant or a zero or a fixed then that in that case that will be a linear ये चीजें लिखनी है ये सब लिखी है ना ये पॉइंट अच्छा अच्छा अब है आपके पास इफ यू हैव केजी इक्वेशन केल्विन गॉर्डन इक्वेशन आपके लिए वो जरूरी नहीं है कि उसमें इतना अंदर क्या जा रहा है लेकिन आपको सिर्फ अभी केल्विन गॉर्डन इक्वेशन उसे केजी इक्वेशन जैसे कहते हैं ये पार्ट ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है इसमें रिलेटिविटी पार्ट का जो है ठीक है केजी इक्वेशन और this is a four-dimensional equation relativistic equation ये पार्टिकल से पहले क्या फ्री free because I am not involving any interaction term for relativistic so for this equal to 0 okay this is आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं समझ this is a differential operator this is a differential operator ठीक है ये डेरिवेटिव है this is also derivative operator टेंसर अभी आपने पढ़ा नहीं होगा इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा आप इसे ये कह सकते हो कि okay clear here ये टेंसर आप एंड अभी आपको इससे ज्यादा गर्ज नहीं है बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द कन्फर्मेंट कोवेरिएंट जब आप टेंसर पढ़ोगे आपको सिर्फ समझना ये है कि ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है मास इज कांस्टेंट सो दिस इक्वेशन इज लीनियर मास इज कांस्टेंट ठीक है this is a rest mass where m naught is rest mass so it is constant so this equation is a linear equation असल में मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स के साथ साथ इंट्रोड्यूस करूंगा ठीक है तो दैट्स विल बी अ linear equation okay यस okay एक और इक्वेशन है
This is de Rham equation. ये इंटीजर स्पिन के लिए होती है, स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा गौर नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि दिस कैन बी, दिस इज आल्सो, यहाँ गैमा म्यू इज अ मैट्रिसेस, गैमा म्यू इज de Rham matrices. These are the de Rham matrices, okay. ये de Rham matrices है, ठीक है। एंड मैट्रिसेस आर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैट्रिसेस क्या होते हैं? लीनियर। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आर नॉन लीनियर, बट मैट्रिसेस आर लीनियर। एओटा -1 का स्क्वायर रूट, इट इज कांस्टेंट, -1 का स्क्वायर रूट, एओटा इज कांस्टेंट। सो एवरीथिंग इज this actually these are the size spinner that is not important for you because this is not your this not come in your course content, so this out of the scope of your course to understand what is the drag spinners and what is the kg spinner, but important is that this is the drag matrices are a linear and matrices are linear, so this will be a linear, and this is also constant, this is also linear. Differential operator is a differential operator is already explained that differential operator is a linear, so that is a linear. So every component, everything is in this equation is a linear. So drag equation it is also for free particles, for free, and that is also a linear differential equation for 2D. Okay, so now today what if we summarize the lecture, today's summarize. Say what is the linear, and we have studied what is the linear function in linear and non-linear function. What are the linear operators and non-linear operators, and we have studied what is the linear equation, differential equation, and what are the non-linear differential equation. And last we have studied the different examples related to the non-linear functions and non-linear operators and non-linear differential equation. Always keep in mind the matrices are linear functions, but determinant of matrices are non-linear. Okay. Secondly, the important point is that if we take the power of any variable, then that will be a non-linear, but if we take the power of any constant, then that will be a linear. Okay, power of the constant is a linear because the power of the constant result will be a constant. Multiplication of constant with any variable will be a linear, but multiply a variable with the variable, that will be a non-linear, that will be not linear. ठीक है, so I think मेरा ख्याल हमने सारे एंड पॉइंट जो है आज इससे linear और non-linear से डिस्कस करनी है. Hopefully lecture will be very simple for you. Try.